नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर उत्तर के मरकल और चिरवाड़ा गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बीदर की ओर से बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए प्रचार बहिरंग सभा का किया गया आयोजन। डीके शिवकुमार विजेंद्र और कुमार स्वामी पर चला चुनाव आयोग का चाबुक, एफआईआर दर्ज। जेडीएस के भाजपा में विलय की अटकलों पर कुमार स्वामी ने तोड़ी चुप्पी, कांग्रेस पर किया पलटवार। कर्नाटक में बेटियों पर हमला हो रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ बरसे नरेंद्र मोदी। वोटिंग के एक दिन बाद मुरादाबाद के बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर के मरकल और चिनवाड़ा गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बीदर की ओर से बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए प्रचार के लिए बहिरंग सभा का आयोजन किया, जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आइन बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आइन हज रहीम खान के अलावा एचके पाटिल, अरविंद कुमार अरली, बीदर जीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, इरशाद खान, अमृतराव चिमकोड़े, अरशद अली पहलवान, चंद्रकांत तिपलगांव के अलावा अन्य नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर ईश्वर खंडे, रहीम खान, अरविंद कुमार अरली ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। सागर खंडेಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। 10 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು। ಶ್ರೀಲಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। 2,000 ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 24,000 ರೂಪಾಯಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 12,000 ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬಂದವ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದವ? ಕೈ ಎತ್ತಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದವ? ಯಾರಿಗೆ ಬಂದವ ಅಭಿನಂದನೆ। ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅರ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ಜನವರ ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ। ಜನವರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾರೆ, ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಾಠ ಸಮಾಜವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಈಗ MLA ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೇನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು। ಈಗ MP ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರು नन्गे शाक आगलत, क्योंकि MP चुनाव ही अलग तरह का दिख रहा है और मेरा चुनाव ही अलग तरीके का था। आप लोगों को मालूम है, बहुत प्रेशर, बहुत ही लोगों का दबाव, ऐसे प्रेशर में भी, ऐसे दबाव में भी लोग मुझे हाथ पकड़े, मदद किए। मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता। जनवाड़ा हर मुझे साथ दिए जो मैं पोजीशन हूं, और मैं भी इस जनवरी में वादा कर रहा हूं, कसम खा रहा हूं, जब तक जिंदा हूं मैं किसी एक बच्चे का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। किसी समाज में भेदभाव नहीं, कोई बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ पे बसवण्णा जी को मानने वाले लोग हैं ज्यादा, शिवाजी महाराज को मानने वाले ज्यादा लोग हैं, सलाम को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरह से सभी समाज, छोटे छोटे समाज के भी बहुत से लोग हैं। वोटर समाज है, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ
ಆಗಲಿ, BSNL ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರ ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೋವಿಡ್ನಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಚೆನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದ, ಚೆನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ದಂಡ ತಗೋರಿ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದಂತಾರ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾವತ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಆ ಭಾವತ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚೆನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ ಖಾವುಂಗಾ ನಾ ಖಾನೆ ದೂಂಗ, ಖಾವುಂಗಾ ನಾ ಖಾವುಂಗಾ ನಾ ಖಾನೆ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಜೋಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಜೋಡತ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು. ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮರ್ಕಲ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಆಗ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಾಗಿ 190% ಮತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 25,000 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು. बसवा कल्याण तालुके के सस्तापुर बंगला के पास अटलपुरा क्रॉस के पास एक तेज रफ्तार एर्टिगा कार पलट गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में तालुके के भोसका गांव के रहने वाले सुनील बसवराज नेहरू उम्र 28 साल की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक निजी समारोह की तैयारियों के लिए भोसका गांव से शहर के बाहरी इलाके अनुभव मंडप के पास पहुंचते समय एर्टिगा कार अटलपुरा क्रॉस के पास नियंत्रण से बाहर हो गई। कार की पिछली सीट पर सवार भोसका गांव की सुनील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकुश पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को बसवा कल्याण नगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और कार में सफर कर रहे 2 अन्य लोग सुरक्षित बच गए। खबर सुनते ही ट्रैफिक थाना पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और ट्रैफिक थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में गलत बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को राज्य के 3 प्रमुख दलों के प्रमुख नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है। आयोग ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरआर नगर में अपार्टमेंट मालिकों को संबोधित करते हुए उस समय आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार डीके शिव कुमार का भाषण आदर्श संहिता का उल्लंघन करता है। ऐसे में चुनाव में रिश्वतखोरी और अनुचित असर के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। टीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के भाजपा में विलय की अटकलों के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस भाजपा उम्मीदवार एच डी कुमार स्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जेडीएस का भाजपा में विलय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वे साथ मिलकर काम करेंगे। मीडिया से साक्षात्कार के दौरान एच डी कुमार स्वामी ने कहा, हमारी पार्टी का किसी अन्य पार्टी के साथ विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। अगर भाजपा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है और सब कुछ ठीक रहा तो जेडीएस का भाजपा में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं। हम साथ में काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं सिद्धरामैया से कहना चाहूंगा कि अगर 100 सिद्धरामैया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो वे हमारी पार्टी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दृष्टिबाधित महिला उषा कृष्णा से मुलाकात की। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। प्रधानमंत्री ने कृष्णा के साथ की तस्वीरों को भी साझा किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दृष्टिबाधित उषा कृष्णा से मिलने का सम्मान मिला। भारत की प्रगति के लिए उनमें बहुत जुनून है। मैंने उन्हें ब्रेल लिपि में लिखी एक पुस्तक भेंट की। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, कड़ी आलोचना की। उन्होंने परोक्ष रूप से हुबली में एमसीए की छात्रा और कांग्रेस नेता की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या का जिक्र किया। यहां पैलेस ग्राउंड पर हुई एक रैली में पीएम मोदी ने लोगों से सावधान रहने और उच्चतम अलर्ट मोड पर रहने की भी अपील की। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यहां हमारी बेटियों पर हमला किया जा रहा है, बाजारों में बम विस्फोट किए गए, भजन और कीर्तन सुनने के लिए हमले किए जाते हैं। ये नियमित घटनाएं नहीं है। इस पृष्ठभूमि में मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से कांग्रेस को लेकर उच्चतम अलर्ट मोड पर रहने की अपील करता हूं। बेंगलुरु पिछले काफी हफ्ते से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने टेक सिटी टैंकर सिटी में बदल दिया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने टेक सिटी टैंकर सिटी में बदल दिया है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पलटवार करते हुए पूछा है कि जब कर्नाटक बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे। संगारेड्डी जिला के सैराबाद में बीजेपी पार्टी कार्यालय में देशट्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें देशट्टी ने बताया कि जहीराबाद को विकास के लिए बीबी पाटिल ने बहुत मेहनत की है, इसलिए जनता ने उन्हें 2 बार एमपी बनाया है। मदन मोहन राव ने जो किया है हम सब उससे नाराज हैं। इस अवसर पर भाजपा नगर प्रवक्ता वीरेश मठपति, नगर कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर उपस्थित थे। सैराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। గత 5 సంవత్సరాల నుండిగా జరుగుతున్న విశేషం అందరికీ తెలిసిన విషయమే। మదన్ మోహన్ రావు అనే వ్యక్తి 2014లో ఎంపీ బీబీ పార్టీ చేతుల మీద ఓడిపోయి మరియు టీడీపీ పార్టీ నుంచి తను పోటీ చేసి అలాగే టీడీపీ పార్టీ నుంచి ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆయన 2 నెలలు 3 నెలలు ఉండి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెళ్ళి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ తెచ్చుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బరిలో దిగి మళ్ళీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారి చేతిలో ఓడిపోయిన అనే ఒక నిరాశతో ఓడిపోయిన అనే ఒక కోపంతో ఆయన అవాస్తవ కేసులు ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారి మీద వేయడం జరిగింది। వాటికి ఆయన వేసిన కేసులకే ఈ రోజున న్యాయస్థానం న్యాయం చేసింది। న్యాయం అనేది కొద్ది ఆలస్యమైనా సరే ఈ రోజున న్యాయం నిరూపణ అయింది। ఆయన వేసిన ఏదైతే కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని అవాస్తవం అని చెప్పి ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా న్యాయస్థానం ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారికి తీర్పు చేయడం జరిగింది। అదే విషయం మదన్ మోహన్ రావు అనే వ్యక్తి అవాస్తవాలు చాలా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారి గురించి। తను ఏం చేసిండు, తను 10 సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు అందుబాటులో లేడు, ప్రజలకు ఎలాంటి సేవ చేయలేడు, ప్రజలకు ఎలాంటి ఒక రూపాయి లబ్ధి చేసే పనులు తీసుకురాలేడు నియోజకవర్గం గురించి అని మాట్లాడుతున్నాడు। అదే మదన్ మోహన్ రావు గారికి మేము చెప్తున్నాం, తెలియజేస్తున్నాం, తను మదన్ మోహన్ రావు గారు ఒక టూరిస్ట్ రావు, ఆయన టూరిస్ట్ లాగా వస్తాడు, ప్రతి ఎలక్షన్లో నించుంటుంటే వెళ్ళిపోతుంది, తనకు ఇక్కడ జరిగిన అభివృద్ధి గురించి ఏం తెలియదు। ఆయనే నిన్న ఒక మీడియా సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది, నేను 90 దేశాలు తిరిగి వచ్చిన అని। ఆయన దేశాలు తిరగడంలో ఉన్నంత శ్రద్ధ ప్రజల మీద కానీ ఆయన నియోజకవర్గంలో కానీ ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కానీ ఉంచితే కనుక చాలా బాగుంటుంది। అది తప్ప ఆయన దేశాల మీద ఆయన వ్యాపారాల మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ ఆయన వ్యాపారాల కోసం పార్టీని మారుకుంటూ వస్తున్న ఘనత మదన్ మోహన్ రావు గారు। అదే బీబీ పాటిల్ గారు అయితే ఆయన గత సంవత్సరాలుగా వ్యాపారాలు చేసి వ్యాపారం తర్వాత संगारेड्डी जिला चेरा संगम मंडल मचनूर गांव के लोग पानी को हो रही परेशानी मिशन भागीरथ के तहत पानी नहीं आ रहा है, इस संबंध में मांग करते हुए लोगों ने जहीराबाद से रायकोट रोड पर ट्रैफिक जाम कर दिया। मिशन भागीरथ का पानी 1 सप्ताह में 1 या 2 बार ही सप्लाई किया जा रहा है। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स देने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को अपीलीय ट्रिब्यूनल CESTAT के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। जस्टिस अभय S. ओक और जस्टिस उज्जवल भाइयों के भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिब्यूनल ने सही कहा है कि शुल्क के लिए शिविरों में योग एक सेवा है। हमें उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए अपील खारिज की जाती है। इसी के साथ अदालत ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल CESTAT ने माना था कि पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर जो भागीदारी के लिए शुल्क लेता है, ये स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की श्रेणी में आता है और इस पर सेवा कर लगता है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बीजेपी मुरादाबाद के उम्मीदवार सर्वेश सिंह, जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण के मतदान के 1 दिन बाद मृत्यु हो गई। वह 72 वर्ष के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने PTI को बताया कुंवर सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा उनके गले में कुछ दिक्कत थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। वह शनिवार को चेकअप के लिए एम्स गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता के निधन को बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। गुरुग्राम के एक शमशान घाट की दीवार गिरने से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। इस घटना में 6 से अधिक लोग चपेटे में आ गए। कई अन्य लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 फीट की ऊंची दीवार आसपास के लोगों पर आ गिरी, जिसके कारण कई लोग दब गए। इस घटना के कारण आधा दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेटे में आ गए और दीवार के नीचे दब गए। घटना में 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने JCB की मदद से मलबे को हटवाया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्तर के मरकल और चनवाड़ा गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बीदर की ओर से बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए प्रचार बहिरंग सभा का किया गया आयोजन। DK शिवकुमार, विजेंद्र और कुमार स्वामी पर चला चुनाव आयोग का चाबुक, FIR दर्ज। जेडीएस के भाजपा में विलय की अटकलों पर कुमार स्वामी ने तोड़ी चुप्पी, कांग्रेस पर किया पलटवार। कर्नाटक में बेटियों पर हमला हो रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ बरसे नरेंद्र मोदी। वोटिंग के 1 दिन बाद मुरादाबाद के बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का हुआ निधन। KP न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।